everyone, welcome to your mathematics class. This is Beena Parihar, your mathematics teacher. Hope you all are doing well at home. So, let's start with the revision. In the previous class, you have done the amazing patterns in square numbers and exercise 2.2. And today we will learn the Pythagorean triplets and then we will do exercise 2.3. So, let's start with the Pythagorean triplets. I know this is new name for you all, that's why I will link it with your previous knowledge. Students, you know Pythagorean triplet is named after the famous mathematician Pythagoras. So we will relate Pythagorean to Pythagoras theorem, and triplet means a group of three numbers which satisfy the property given by the Pythagoras. Here ABC is a right angle triangle where small ABC denotes its base, perpendicular and hypotenuse respectively. So according to the Pythagoras theorem, a square plus b square is equal to c square. It means the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of base and perpendicular. It means अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स सी का स्क्वायर इक्वल होगा इसकी अदर टू साइड्स मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के सम के. Okay, this was Pythagoras theorem. Now see how it works. Here we have an example where ABC is an right angle triangle and we put 3, 4, 5 on the place of ABC respectively. Let's see the sum of the square of 3 and 4 is equal to the square of 5 or not. So you can see the square of 3 is 9 and the square of 4 is 16, and after adding 9 plus 16 we get 25, that is the square of 5. So hence it is proved that a square plus b square is equal to c square, and we can say a, b and c are the three members of Pythagorean triplets. Let's see how to generate Pythagorean triplet by using formula. Here a is equal to m square minus 1 and b is equal to 2m and c is equal to m square plus 1, where m is greater than to 1. For example, let's take m is equal to 3, then 2m is equal to 6 and m square minus 1. It means 3 square minus 1 is equal to 8 and m square plus 1 means 9 plus 1 is equal to 10. We know that 6, 8 and 10 is a Pythagorean triplet. For verification, you can check this value by putting in a square plus b square is equal to c square. Here, by using triplets number, I have written some Pythagorean triplets number. You can check it and you can also prepare a list of some more Pythagorean triplets. The exercise 2.3 of squares and square roots, and first question is check whether the following triplets are Pythagorean triplets or not. यहाँ पर आपको 3 नंबर्स का एक पेयर दिया हुआ है और आपको बताना है ये तीनों नंबर्स का पेयर Pythagorean triplets में है या नहीं. ओके, Pythagorean triplets पे अप्लाई करता है या नहीं. ओके, तो इन सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, आपको पता है कि Pythagorean triplets के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था. वो फॉर्मूला क्या है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. ओके, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2m इज इक्वल टू हम क्या रख लेंगे, जो अपना पहला नंबर है हम इसको चेक करेंगे, इससे हम आगे के 2 नंबर्स फाइंड कर लेंगे. ये दोनों नंबर्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे. फिर हम देखते हैं कि हमारा जो आगे के ये वाला नंबर है 35 के इक्वल आ रहा है या नहीं, और m स्क्वायर प्लस 1 37 के इक्वल आ रहा है या नहीं. अगर ये तीनों नंबर यहाँ से हमें यही मिल रहे हैं तो ये ट्रिपलेट है, अदरवाइज ट्रिपलेट नहीं है. ओके, सो हमने क्या किया, यहाँ पे 2m इज इक्वल टू हमने कितना रखा था, 12 रखा है. यहाँ से हमें m की वैल्यू कितनी मिल गई, 6. अब हम चेक करेंगे इसी को, 6 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1. ओके, तो m स्क्वायर माइनस 1 में जब आप 6 पुट करेंगे तो आपको पता है m स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर. ओके, तो 6 का स्क्वायर कितना है, 36 एंड माइनस 1, 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35. ओके, तो सेकंड नंबर हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. अब हम थर्ड नंबर फाइंड करेंगे जो हमारा क्या है, m स्क्वायर प्लस 1. m स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी ऊपर से 6. ठीक है, हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का कितना है, 36, और प्लस 1 है तो हमने प्लस 1 कर दिया. 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 37. मीन्स जो हमारे नंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊपर जो हमें नंबर गिवन थे 12, 35 एंड 37. ओके, देखिए ये नंबर निकल के आया हमारा, 2m इज इक्वल टू कितना है,
12 m square minus 1 is equal to 35 एंड m square प्लस 1 is equal to 37. तो हम कह सकते हैं कि yes, these three numbers are Pythagorean triplet. Okay. The next part B is 8, 9 and 14. यहाँ पे हमें इन तीनों नंबर्स को चेक करना है कि ये तीनों नंबर जो हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है। तो वही करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। जो सबसे पहला नंबर है हम इसको मान लेते हैं कि 2m इज इक्वल टू 8 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें m इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे से m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 को m कितना था 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 दैट इज 15। ओके, नेक्स्ट है m स्क्वायर प्लस 1, m मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 16 प्लस 1 एंड इट विल बी 17। ओके, सो अब आप देखेंगे यहाँ से जो हमें नंबर गिवन थे वो हमें क्या नंबर गिवन थे 8, 9 एंड 14, और जो हमारे नंबर निकल के आ रहे हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, ये जो हमारे पास ट्रिपलेट थे इन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग नंबर्स हमारे पास क्या आ रहा है 2m इज इक्वल टू 8, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो तीनों नंबर गिवन हैं इसमें ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। और दूसरी आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इन दोनों आइडेंटिटी को यूज़ करते हो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपको एक नंबर दिया होगा जिनकी आपको स्क्वायर फाइंड करना है। ओके, तो ये हमें नंबर यहाँ पे गिवन है वो नंबर क्या है, फर्स्ट हमें दे रखा है 99, मीन्स हमें 99 का स्क्वायर करना है। आपको पता है 99 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 100 माइनस 1। ओके, तो जब हमें इसका स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे 100 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 99 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, आप देखिए यहाँ से 100 माइनस 1 ए प्लस बी की फॉर्म में आ रहा है, ए माइनस बी की फॉर्म में आना है, बताइए ये आ रहा है ए माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी की होल स्क्वायर से दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर एंड माइनस 2ab माइनस 2, ए कितना था 100 और बी कितना था 1। ओके, तो यहाँ से ए स्क्वायर जब 100 का आप जब स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना मिलेगा आपको 100 का स्क्वायर करके 10,000, और 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही होता है, माइनस एज इट इज़ रहेगा और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 200। अब हमने इनको प्लस किया, ये आ गया 10,001 एंड इसको माइनस कर देंगे 200 को, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 9,801। और ये क्या होता है, ये 99 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप 99 इंटू 99 करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसका स्क्वायर होता है। तो हमें इस तरीके से हम फॉर्मेट यूज़ करके भी स्क्वायर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें नंबर दिया है सी पार्टनर वो है 38 का स्क्वायर। तो आपको पता है 38 क्या है, 38 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 40 माइनस 2। ओके, 40 माइनस 2 कितना होता है 38। अब आप देखेंगे यहाँ पे बीच में माइनस आ रहा है यानी कि कौन सी फॉर्मेट बन गई है, ये बन गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले से हम इसको एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह हम रखेंगे 40 और बी की जगह रखेंगे 2, और यहाँ से हम क्या करेंगे इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 38 का स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, 38 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1444। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। मीन्स आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने हैं जिनमें से ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं ना, ये तीनों नंबर्स होते हैं ट्रिपलेट में, लेकिन आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ वो भी कैसा स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है। ठीक है, और आपको बाकी के नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। आपको स्मॉलेस्ट मीन्स 2m की वैल्यू दे रखी है, आपको ये दोनों वैल्यूज़ m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट दे रखी है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 2m इज इक्वल टू 16 पुट कर देंगे क्योंकि 16 हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8, और m की वैल्यू को हम इसमें और इसमें दोनों में रख के m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 65 निकाल लेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू जो है हमें 63 मिल जाएगी। ओके, तो अब यहाँ से आप देखेंगे जो हमारा गिवन था क्या था, हमें गिवन 16। ठीक है, और हमें बाकी की हमें दोनों निकालने थे ना ट्रिपलेट में, तो हमने फाइंड कर लिए। तो फर्स्ट हमारी डिजिट क्या हो गई 16, 65 एंड 63। तो ये तीनों क्या हैं, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ओके,
नेक्स्ट पार्ट सी इज़ 14। तो यहाँ पर आपको 14 दिया हुआ है। 14 किसके इक्वल दे रखा है, 2m, मीन्स क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नंबर है तो 2m इज इक्वल टू जब हम 14 रखेंगे तो यहाँ से आपको m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 49 माइनस 1 वो कितना हो जाएगा 48। एम स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49 प्लस 1 50। ओके, तो ये हमारे तीनों नंबर्स हो गए। 2m हमें 14 गिवन था, बाकी के दो हमने फाइंड कर लिए 48 एंड 50। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन ऑफ हुज नंबर इज। यहाँ पर आपको ट्रिपलेट में से कोई एक नंबर गिवन है, ये नहीं बताया कि वो बड़ा है या छोटा है, स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं गिवन है, बस आपको बताया है कि एक नंबर आपको दिया गया है, बाकी के दो नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो हमें ये तो पता ही है कि ये तीनों नंबर क्या होते हैं, हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक कर लेते हैं। ओके, पहले हम 16 को इक्वल रखेंगे किसके, 2m के, क्योंकि वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2m इज इक्वल टू 16 रखा है, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई 1। अब हम इस m की वैल्यू को बाकी के जो हमारे 2 नंबर्स होते हैं उनमें पुट करेंगे, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 में और m स्क्वायर प्लस 1 में। तो m स्क्वायर माइनस 1 में रखने से हमें कितना मिला, m स्क्वायर यानी कि m था हमारा 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 63। m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 65। ओके, तो यहाँ से हमारे जो ट्रिपलेट्स नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से हमारे ट्रिपलेट्स नंबर हो जाएंगे 16, 63 एंड 65। सॉरी, यहाँ पर ये गलती से प्रिंट हो गया है, तो आप इसको ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है 2m वो कितना है 16, सेकेंड हमारा 63 एंड थर्ड हमारा 65। ओके, तो ये हमारे ट्रिपलेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट कि 17, यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ 17। अब हम 17 को एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम 2m इक्वल टू 17 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 2m इक्वल टू 17 रख रहे हैं तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो कैसी निकल के आ रही है, एक नेचुरल नंबर नहीं निकल रही है, मीन्स वो डेसिमल में निकलेगी 17/2, क्योंकि आपको पता है 17 क्या है, एक इवन नंबर नहीं है ना। तो यहाँ से ये m की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगी, तो इसलिए हम 2m इक्वल 17 नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं ये हमेशा नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, डेसिमल्स में या फिर ये नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हम कितना पुट करेंगे 17, क्योंकि यही हमें गिवन है ना एक नंबर, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 17 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आर के साइड जाके, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो आप देखेंगे 18 m स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आ रहा है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है m की, और हम कब निकालते हैं m की वैल्यू, अगर हमें इक्वल में नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है, लेकिन 18 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसको भी नहीं रख सकते, ये भी गलत है कि m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये भी गलत है। अब हमारे पास जो लास्ट नंबर बचा है वो क्या है, m स्क्वायर प्लस 1। हम इसके इक्वल में 17 पुट करके देखेंगे तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी 17 माइनस 1। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 17 माइनस 1 दैट इज 16। तो 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यहाँ से हमें m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम m की वैल्यू अगर 4 मिल गई है तो हम बाकी के नंबर भी निकाल सकते हैं। 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज़ 8, और यहाँ इसी तरीके से हम बाकी के जो नंबर है हम वो भी फाइंड कर लेंगे, यानी कि m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। Okay. See you soon in the next video. Till then, be safe at home. Thank you. Have a nice day.